ہم میں سے ہر ایک اللہ کو پکارتا ہے، اس کو محسوس کرنا چاہتا ہے، اس سے اپنی بات منوانا چاہتا ہے۔ کبھی بہت شدت کی پکار ہوتی ہے اور کبھی عام سی۔ تو کیا آپ اللہ کے وہ الفاظ جاننا چاہتے ہیں جو اس نے اپنے پکارنے والے کے لیے قرآن مجید میں فرمائے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ کتنی خوبصورت آیت ہے کہ اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے جب وہ آپ سے میرے بارے میں پوچھیں۔ ہماری توقع یہ تھی کہ اللہ نبی سے کہے گا کہ جب وہ آپ سے پوچھیں تو آپ انہیں بتائیں کہ میں قریب ہوں، لیکن نہیں، اللہ کہتا ہے جب وہ آپ سے پوچھیں۔ یہاں اللہ اپنے نبی سے بات کو بیچ میں ڈراپ کرتا ہے اور آپ اور مجھ سے ڈائریکٹ بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یقیناً قریب ہوں۔ سبحان اللہ، یعنی کہ جب ہم اپنے اللہ کو پکارتے ہیں تو وہ یقیناً ہمیں اس کا جواب دیتا ہے۔ یہ سوچنا کہ مجھے کافی دن ہوئے اللہ سے بات نہیں کی، وہ میری بات کا جواب دے گا یا نہیں؟ نہیں نہیں نہیں، اللہ کہتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا اگر وہ مجھے پکارے، بلکہ کہا جب وہ مجھے پکارے، کیونکہ اللہ جانتا ہے وہ اپنے بندے سے پر امید ہے کہ اس کا بندہ اس کو ضرور پکارے گا۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور ان خوبصورت لمحات میں ہمارے ساتھ رہیے کہ ہم اللہ سے بات کرنے کا طریقہ سیکھنے جا رہے ہیں۔ ٹھہریں، رک جائیں۔ اللہ سے بات کرنے نہیں، اللہ کے ساتھ بات کرنے۔ سننے میں دونوں ہی ایک جیسے الفاظ معلوم ہوتے ہیں، لیکن یہ دونوں ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں۔ ان الفاظ کے فرق کو ہم اس چھوٹی سی مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں کہ آپ اپنے بہترین دوست کے ساتھ فون پر بات کر رہے ہیں اور 10 منٹ بعد آپ کو احساس ہوتا ہے کہ 10 منٹ سے صرف آپ ہی بول رہے ہیں اور دوست نے کچھ نہیں کہا، تو اس طرح کی بات چیت کو آپ کیا کہیں گے؟ چلے میں اس کو آسان کر دیتا ہوں۔ آپ کے ذہن میں یہ باتیں آئیں گی کہ پتہ نہیں دوست نے میری بات سنی بھی کہ نہیں، یا شاید وہ سن تو سب رہا تھا لیکن دھیان کسی اور طرف تھا، یا شاید سگنل ڈراپ ہو گئے۔ جی ہاں، اس طرح کی بات چیت کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ان سے بات کر رہے تھے، ان کے ساتھ نہیں۔ تو ہم یہ جاننے والے ہیں کہ آیا ہم اللہ کے ساتھ بات کرتے ہیں یا ہمارے سگنل بھی ڈراپ ہی رہتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ اپنی دعاؤں میں بھی یہی کرتے ہیں؟ آج ہم ایک بہت بڑے اور اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں، لہذا پوری توجہ سے اس پیغام کو سمجھ کر دل میں اتارنے کی کوشش کیجیے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مومن اللہ کے قریب سب سے زیادہ کب ہوتا ہے، اور اس کا کون سا عمل اس کو روحانی ترقی کے اعلیٰ درجے پر پہنچا دیتا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ نماز مومن کی معراج ہے، یعنی نماز روحانیت کے اعلیٰ درجے کی انتہا ہے۔ یہ بندہ کا اللہ سے براہ راست رابطے کا ذریعہ ہے، اگر بندہ دل و دماغ کی حاضری کے ساتھ اللہ سے رابطہ کرے۔ جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج میں اللہ کی قربت عطا ہوئی، اسی طرح نماز مومن کے لیے معراج کا ذریعہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور میرا بندہ کسی چیز کے ذریعے میرا قرب حاصل نہیں کرتا جو مجھے ان فرائض سے زیادہ محبوب ہو جو میں نے اس پر فرض کیے ہیں، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے کچھ مانگے تو میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں اسے ضرور پناہ دیتا ہوں۔ زیادہ تر لوگ نماز کو ایک ورک لسٹ یا ٹاسک کی طرح لیتے ہیں۔ ہم الفاظ کہتے ہیں، اپنی ضرورت کی چیزیں مانگتے ہیں اور نماز ختم ہو جاتی ہے، لیکن کیا یہ واقعی وہ نماز ہے جو اللہ ہم سے چاہتا ہے؟ کیا یہ وہ رشتہ ہے جو اللہ ہم سے چاہتا ہے؟ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ بات کرنا کیسا ہوتا ہے، نہ کہ صرف اس سے بات کرنا، تو دیکھتے رہیں۔ ہم اسے سٹیپ بائی سٹیپ سمجھتے ہیں۔ چیپٹر 1،
हमें अल्लाह के साथ हकीकी बातचीत को समझना है। जब हम अल्लाह से बात करते हैं तो हम बुनियादी तौर पर एक खरीदारी की फहरिस्त पढ़ रहे होते हैं। अल्लाह मुझे ये चाहिए, अल्लाह ये ठीक कर दें। हम अपनी दुआएं मांगते हैं और चले जाते हैं। लेकिन अल्लाह के साथ बात करना एक बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वुर है। इस बार हम सिर्फ बोल नहीं रहे, हम सुन भी रहे हैं। अब हमें सिर्फ अपना मुंह नहीं खोलना, बल्कि अपना दिल भी खोलना है। लेकिन हमारी बातचीत में कुछ कमी है। आखिर क्या? वो कौन सी चीज है जो हमें इन हकीकी बातचीत से रोक रही है? दो बड़ी चीजें, तवज्जो की कमी और नमाज को एक काम की तरह लेना। अब आप खुद से यह सवाल करें कि कितनी बार आपने खुद को पकड़ा है कि आपकी तवज्जो कहीं और है। नमाज के दौरान दूसरी चीजों के बारे में सोचना या सिर्फ अपनी काम की फहरिस्त से निकालने के लिए जल्दी से नमाज पढ़ना। मैं खुद भी नमाज के दौरान वहां रहा हूं। जब हम अपनी दुआओं में हाजिर नहीं होते तो हम अपने और अल्लाह के दरमियान एक दीवार बना रहे होते हैं। लेकिन बात यह है कि अल्लाह हमें करीब चाहता है। वह कुरान में फरमाता है, वनहनु अक़रबु मिन हब्लिल वरीद, और हम उसकी शहर रग से भी ज्यादा करीब हैं। इसके बारे में सोचें, शहर रग ये आपको अभी जिंदा रख रही है और अल्लाह कह रहा है कि वो उससे भी ज्यादा करीब है। तो फिर हम अपनी दुआओं में अक्सर अल्लाह को इतना दूर क्यों महसूस करते हैं? ये इसलिए नहीं कि अल्लाह दूर है, अल्लाह तो कह रहा है मैं करीब हूं, बल्कि इसलिए कि हम वाकई मौजूद नहीं हैं। इन रुकावटों को तोड़ने और अल्लाह से वाकई जुड़ने का राज ये है कि हम नमाज को कैसे अप्रोच करते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आपको अपनी अरबी को कामिल बनाना है। यह इस बारे में है कि आप वाकई हाजिर हों। यह इस बारे में है कि आप अल्लाह के साथ इतने ही हाजिर हों जितना आप अपने सबसे करीबी दोस्त के साथ होंगे, क्योंकि यही वो रिश्ता है जिसकी वो हमें दावत दे रहा है, कुर्बत का, मोहब्बत का, हकीकी गुफ्तगू का। चैप्टर 2। इस हकीकी बातचीत के लिए हमें तैयारी करनी होगी। अब जबकि हम समझ गए हैं कि अल्लाह के साथ हकीकी गुफ्तगू कैसी होती है, आइए बात करते हैं कि कैसे तैयारी करें। सबसे पहले सही माहौल बनाना। इसका मतलब यह नहीं कि आप सिर्फ एक खामोश कोने में जाएं। यह इस बारे में है कि आप अपनी जगह और अपने दिमाग को नमाज शुरू करने से पहले तैयार करें। एक मिनट लें, सांस लें, अपने दिमाग को साफ करें, अपने फोन को साइलेंट कर दें। इस वक्त को ऐसे लें जैसे आप अपनी जिंदगी के सबसे अहम शख्स से मिल रहे हैं, क्योंकि आप वाकई मिल रहे हैं। अब बात करते हैं कि नमाज में मुकम्मल मौजूदगी का एहसास कैसे हासिल करें। यह वो वक्त है जब आपको तीनों चीजों को अल्लाह पर मरकूज करना है। वो तीनों चीजें हैं दिल, दिमाग और जिस्म। यही वो चीज है जो नमाज को एक रूटीन से बातचीत में बदल देती है। तो हम वहां कैसे पहुंचें? यहां कुछ टेक्निक्स हैं जो मेरी मदद करती हैं। नंबर 1, आहिस्ता पढ़ें, हर लफ्ज और हर हरकत के साथ अपना वक्त लें। नंबर 2, समझें कि आप क्या कह रहे हैं। अगर आपको अरबी नहीं आती तो इन सूरतों के मानी सीखें जो आप अक्सर पढ़ते हैं। नंबर 3, अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करें। जब आप अल्लाहु अकबर कहते हैं तो वाकई सोचें कि अल्लाह कितना अजीम है। नंबर 4, अपने आप को चेक करें और अगर आपका जहन भटक जाए तो नरमी से इसे वापस लाएं। याद रखें कि नमाज में अपनी तवज्जो को बेहतर बनाना, इसमें वक्त और मशक लगती है। कुछ दिन बेहतर होंगे और कुछ नहीं, और यह ठीक है। असल यह है कि आप मुसलसल हाजिर रहें और कोशिश करते रहें, क्योंकि हर बार जब आप ऐसा करते हैं तो आप इस हकीकी जिंदगी बदलने वाली गुफ्तगू के दरवाजे को थोड़ा सा और खोल रहे होते हैं। चैप्टर 3। अब जबकि हम पूरी तरह हाजिर हैं और तैयारी भी कर चुके हैं, तो अब बारी है दिल से बात करने की। आइए इस बारे में हकीकी बात करें कि हम अल्लाह से कैसे बात करते हैं। सबसे पहले, अल्लाह को आपके शानदार अल्फाज की जरूरत नहीं है। वो जो चाहता है वो इखलास है। यह बेहतर है कि आप दिल की गहराइयों से कहें कि आप कोशिश कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप एक दुआ पढ़ें जिसका आप वाकई मतलब नहीं रखते। आप गलत ना समझें, मुकर्ररा दुआएं अहम हैं। वो हमें सिखाती हैं कि अल्लाह से कैसे बात करें, हमें अल्फाज देती हैं जब हमारे पास नहीं होते। लेकिन मेरा नुक्ता यह है कि आपको वहां रुकना नहीं चाहिए। अपनी बातों में अपने अल्फाज शामिल करें। अल्लाह के साथ बेतकल्लुफ होकर बात करें। ऐसे बात करें
जैसे आप किसी ऐसे शख्स से बात कर रहे हैं जो आपको सबसे बेहतर जानता है। अल्लाह पहले ही जानता है कि आप कब तकलीफ में हैं, कब उलझन में हैं, कब आपने गलती की है। अगर आप कुछ भारी चीजों से गुजर रहे हैं और नमाज भी ठीक से अदा नहीं हो रही, तो जान रखें कि अल्लाह आपके दर्द को पहले ही जानता है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। तो अपनी अगली नमाज में सब कुछ बाहर निकाल दें। अल्लाह को बताएं कि आप कैसा महसूस कर रहे हों, बगैर किसी फिल्टर के। आप अंदाजा करेंगे कि यह आपकी जिंदगी की सबसे ताकतवर दुआओं में से एक थी। चैप्टर 4, नमाज में एक्टिवली सुनना। यहां वो जगह है जहां हम में से ज्यादातर लोग गलती करते हैं। हम अल्लाह से बात करते हैं लेकिन सुनना भूल जाते हैं। नमाज सिर्फ हमारे बोलने के बारे में नहीं है, यह भी सुनने के बारे में है कि अल्लाह क्या कहना चाहता है। तो हम अल्लाह को कैसे सुनते हैं? यह हमारे जहनों को खामोश करने से शुरू होता है। अल्लाह का जवाब अक्सर लतीफ तरीकों से आता है। उसके जवाबात हमेशा नमाज के दौरान नहीं आते। कभी कभी ये एक आयत होती है जो अचानक आपको समझ में आती है, या किसी दोस्त का मशवरा जो क्लिक करता है, या यहां तक कि एक बज़ाहिर बेतरतीब वाकया जो आपके किसी मसले को हल करता है जिसके लिए आप कोशिश कर रहे हैं। इसको समझने की असल की ये है कि होशियार रहें और इन निशानियों को देखें। हम एक फौरी तस्कीन की दुनिया में रहते हैं। हम अभी जवाबात चाहते हैं, लेकिन अल्लाह का वक्त हमारा वक्त नहीं है। कभी कभी जवाब इंतजार करो होता है, और वो इंतजार का अरसा अल्लाह पर हमारे एतमाद का इम्तिहान होता है। चैप्टर 5, इस बात को कुछ हिस्सों में डिवाइड करते हैं कि अल्लाह के साथ एक हकीकी दिल से बातचीत कैसी होती है। इसे एक घर बनाने की तरह समझें। आपको एक मजबूत स्ट्रक्चर की जरूरत है, लेकिन आप घर को कैसे सजाते हैं यह आप पर डिपेंड करता है। तारीफ और शुक्रगुजारी से शुरू। कुछ मांगने से पहले तस्लीम करें कि आप किससे बात कर रहे हैं, उसकी अजमत को पहचानें। यहां तक कि आपके बदतरीन दिन पर भी आपके पास अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए चीजें हैं। आपकी सांस, आपकी नजर, यह हकीकत कि आप नमाज पढ़ने के काबिल हैं। यह आपकी बातचीत के लिए लहजा मुकर्रर करता है। अगला, माफी मांगे। हम सब रोजाना गलतियां करते हैं, लिहाजा अल्लाह से अपनी गलतियों का एतराफ करें। मखसूस अल्फाज सिर्फ मुझे माफ कर दो न कहीं, बल्कि बताएं कि किस लिए। अब यहां वो जगह है जहां हम में से बहुत से लोग सिर्फ जाती जरूरियात या फैमिली के लिए दुआ करते हैं, लेकिन ये कोशिश करें अपने साथ सबके लिए दुआ करें, अपने वालिदीन, अपने बहन भाइयों, उम्मत के लिए, यहां तक कि उन लोगों के लिए जिन्होंने आपके साथ गलत किया है। जो आप चाहते हैं उसके बारे में हकीकी बने, लेकिन याद रखें कि जो आपको जरूरत है उसके लिए दुआ करें। आखिर में एतिमाद और तस्लीम के साथ खत्म करें। जब आपने अपनी बात कह दी तो इसे अल्लाह के हवाले कर दें। उस पर एतिमाद करें कि जो कुछ भी आएगा वो आपके लिए बेहतरीन होगा। याद रखें, यह एक सख्त फॉर्मूला नहीं है। कुछ दिन आप ज्यादा वक्त माफी मांगने में गुजार सकते हैं, दूसरे दिन आप शुक्रगुजारी से भरे हो सकते हैं। यह ठीक है। असल चीज यह है कि इन तमाम बुनियादों को इस तरह से कवर करें जो आपके लिए हकीकी महसूस हो, क्योंकि दिन के आखिर में यही वो चीज है जो अल्लाह चाहता है, आपके साथ एक हकीकी ईमानदार बातचीत। लेकिन बात यह है कि अगर आप इसे प्रैक्टिकली नहीं करते तो यह सब कुछ बेमानी है। तो यहां मैं चाहता हूं कि आप अभी करें। इस वीडियो से एक चीज सिलेक्ट करें, सिर्फ एक, और इसे अपनी अगली नमाज में आजमाएं। नमाज न पढ़ने वालों के लिए कितनी सख्त आयत है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, फी जन्नातिन यतसाअलून अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सकर कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। जो बागात में होंगे सवाल करेंगे मुजरिमों के बारे में, तुम्हें क्या चीज दोज़ख में ले गई? वो कहेंगे हम नमाज पढ़ने वालों में से न थे। अल्लाह हमें नमाज कायम करने वालों में से बनाए, आमीन। अगर आपको यह मददगार और कीमती लगा तो इस रिमाइंडर को उन लोगों के साथ शेयर करें जिनसे आप वाकई मोहब्बत करते हैं। जाते जाते अल्लाह से यह दुआ करते हैं कि अल्लाह, हम बहुत गुनहगार हैं, बस अपनी इस्लाह चाहते हैं, ऐसी इस्लाह जो आपके करीब कर दे। आमीन सुम्मा आमीन।